Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. Today, we are going to talk about the human eyes and the defects that can occur in the human eye. Right? Basically, उसका structure, क्या parts होते हैं, and how the image formation takes place inside the human eye. We do also have a lens, right? जो कि हम लोगों ने lens में पढ़ा था कि वो किस तरीके की images बनाते हैं. So let's see what type of images are formed inside our eyes using that lens and which type of lens is used inside our human eye. We are going to check that out. Alright, we are going to study about that. Also the defects and their correction, how we can correct the defect, right? ये भी चीज़ें हम लोग आज के lecture में देखने वाले हैं. Alright, so let's start it. And you all know that we do deal with the school examination as well as the Olympiad. So if you are studying these lectures just for to get good marks in the school examination, or you want to get good rank in the Olympiads, you can watch these video lectures, and also you can increase your knowledge by watching these video lectures. So basically you need to see that, right? You need to study more and you will be getting all your dreams you have about your studies. If you want DPPs and study material, you can access them through our Telegram channel. You can write this code TTB010 in the search box of the Telegram app. Then only the 10th class channel appear, and then you can join the channel. You can access all the DPPs and study material available over there along with the notifications. Now see, this is the team which is going to help you a lot, because हम आपके लिए बहुत efforts जो है डाल रहे हैं so that we can provide you the quality content you deserve for your examination, for your preparation, your educational journey. That is what our goal, and we are trying our best to do so. So what you need to do is you need to study from these video lectures, and then you are going to share these video lectures to every one of your friends so that they can also complete their goals, and they can achieve their goals, their educational goals basically, right? So that is what you need to do. Now the next thing I want to tell you is that by only watching these video lectures is not going to do anything, right? You are going to do your homework, you're going to be in the process, in the testing part, right? So basically what you can do is you can join our packages, and those packages are available on our website. That is the www.talkingtextbooks.in. So if you go on our website, you are going to get two type of packages over there: full package and the test series. So full package contains all the necessary things you need to get, right? So you need to get so that in order you are going to crack the examination or get good marks, right? So basically कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही minimum है, but you need that. For example, you need a good study material, right? That is the first step you can take. You can collect all your resources, right? So first of all is the study material, and then comes the recorded or the live classes. Okay, and then comes the homework submission feature where you will be doing the homework and you will be submitting to us. Then comes the testing part, that is the periodic test papers and the bi-weekly quizzes. So these testing part, studying part, homework part, right, in सबका combination is in the package. Okay, so you can join that, and if you just want to join the test series, then you can do that also, right? You can join the test series, and in this test series, what you will be getting is the bi-weekly quizzes, periodic test papers, and the recorded and live classes. So you are going to get all these things, right? Now the next thing I want to tell you that if you want to buy these packages, then you can write my code CYLIVE to get a 30% discount. And if you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. That is our number. So make sure that you call us and all your queries resolve over there about these packages. So if you want to know them, you can call us. Now let's get started and promise ourselves that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. That is the must thing you can do, and that should be doing, right? अभी हम लोग अपना चैप्टर स्टडी करें, दैट इज़ अ थर्ड चैप्टर, और ये चैप्टर जो है आज उसका लास्ट लेक्चर है. देन वी विल बी रिवाइजिंग द चैप्टर एंड देन वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस ओवर देयर. ऑलराइट, बट द थिंग इज कि अगर आप पिछले चैप्टर्स को भूल जाएंगे तो इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू रिवाइज द प्रीवियस चैप्टर्स. जो हमने 1 पढ़ा हुआ है, जो हमने 2nd पढ़ा हुआ है, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज, यू नीड टू रिवाइज दोज, ठीक है, ताकि हम जो 3rd पढ़ रहे हैं देन हम 4th पढ़ने वाले होंगे, राइट? तो ये पढ़ते पढ़ते भी पुराने चैप्टर्स ना छूटें, इस बात का ध्यान आपको रखना है, ठीक है? और ये तभी हो सकता है जब आप रिवीजन करें.
अभी हम लोग अपना ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नॉट दैट चैप्टर बट की लेक्चर, दिस इज द लास्ट लेक्चर, ठीक है, जो कि हम पढ़ रहे हैं. तो दिस इज द लेक्चर 14 एंड वी आर गोइंग टू सी अबाउट द ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट्स. ऑलराइट, तो बेसिकली आज के दिन हम ह्यूमन आई, उसके पार्ट, उसकी वर्किंग और जो फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए अबाउट द ह्यूमन आई एंड जो डिफेक्ट्स उसके अंदर अकर हो सकते हैं एंड हाउ दोज डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड, ये सब चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं स्पेसिफिकली. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो देखो, हमारी जो ह्यूमन आई है, ठीक है, यू कैन सी योर आई इन द मिरर, ऑलराइट, टू सी दैट एंड ऑब्जर्व इट. सो बेसिकली ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है, राइट. ये ऑर्गन इकलौता ऐसा ऑर्गन है विच कैन सेंस द लाइट को सेंस कर सकता है एंड जस्ट बाय सेंसिंग द लाइट इट कैन सी द वेरियस थिंग्स अराउंड यू, राइट. सो बेसिकली आईज एक ऐसा पार्ट है जो कि लाइट के द्वारा बहुत सेंसिटिव है. इफ देयर इज नो लाइट यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग इवन इफ यू हैव आईज, right. So basically it is like you can say it is sensitive to light first of all and it forms images in the presence of light only, right. तो ये हमारा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है ऑर्गन एंड इकलौता ये ऑर्गन है जो कलर्स को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है. जैसे अगर मान लो अगर आप आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है, तो यू कैन टच ऑल द थिंग्स, यू कैन गेट द टेक्सचर, राइट, यू कैन आइडेंटिफाई थिंग्स बट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द कलर ऑफ द थिंग्स. Maybe if you are having let imagine that you have a pencil in your hand, ठीक है, and close your eyes. सबसे पहले क्लोज करना है, then hold a pencil in your hand. आप पेंसिल को छूते ही पहचान जाओगे बिकॉज यू नो द शेप ऑफ अ पेंसिल, राइट. बट वो पेंसिल कौन से कलर की है ये आप आंखें बंद करके नहीं पहचान सकते. सो बेसिकली हमारी आईज जो हैं दैट हेल्प्स इन सीइंग ऑल द वेराइटी ऑफ कलर्स, ऑल द वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस, राइट. सो दैट इज़ वॉट हमारी आईज इतनी ज़्यादा यू कैन से हेल्पफुल है, सेंसिटिव है अबाउट द लाइट, राइट. फिर देखो, it is like a camera having a lens system and forming an inverted real image on a light sensitive screen inside the eye. So basically it works as a camera, but because we do have lens, we do have screen, right, and we always form a inverted and real image because real images can be obtained on screen, right. So there has to be a screen if we are having a real image over there, ठीक है. तो वहां पर अगर रियल इमेज बन रही है तो दैट मीन्स वी हैव अ स्क्रीन ओवर देयर, ठीक है. तो स्क्रीन है, हमारे पास लेंस है, राइट, एंड दिस होल स्ट्रक्चर, राइट, दिस होल स्ट्रक्चर वर्क्स एज अ कैमरा जो कि पास की चीज़ें भी देख सकता है, दूर की चीज़ें भी देख सकता है. सो बेसिकली हमारे लेंस में ऐसी यू कैन से एबिलिटी है कि वो पास की चीज़ें भी देख सकता है और दूर की चीज़ें भी देख सकता है. मतलब इट कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द नीड, राइट. बट अगर हम बेसिकली कॉमन लेंसेज की बात करें जैसे कि हमारे कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंसेज हैं, उनका फोकल लेंथ चेंज नहीं हो सकता. इफ़ अ लेंस इज बीइंग फॉर्म्ड, एक बार बन गया है वो लेंस, उसका फोकल लेंथ फिक्स है तो वो उतना ही रहेगा, राइट, वो चेंज नहीं होता. बट वी डू हैव अ नेचुरल लेंस विच कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ, right, which can see the nearby things, also the far away things, right. So that is the main beautiful thing, or you can say a natural camera, that is our eyes. All right, now see, this is the actual structure of our eye, ठीक है, ये है actual structure. इसमें बहुत सारे parts हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, right. We have crystalline lens, this is the lens जो कि अपनी focal length change करता है और हमें चीज़ों को देखने में help करता है. Aqueous humor, that is the transparent liquid जो कि filled होता है in front of your eye, ठीक है. Pupil is can be said as the window जहाँ से light enter होती है हमारी आँखों में. फिर देखिए iris, everyone has different colors of the eye. Somebody has blue eyes, green, black, brown, right. तो ये जो कलर्स हैं ये किन के कलर्स होते हैं, आयरिस के. ऑलराइट, तो द कलर डायफ्राम इज द आयरिस वन. स्क्लेरा, जो वाइट पोर्शन आप देख रहे हैं अपनी गोल आंखों के आसपास, जो वाइट पोर्शन आप देख रहे हैं दैट वाइट पोर्शन इज द स्क्लेरा. फिर देखिए कॉर्निया, जस्ट अ सेकेंड. फिर देखिए कॉर्निया, दिस इज द आउटर लेयर, ठीक है, जो शाइनी आउटर लेयर होती है एंड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट द कॉर्निया. देखिए विट्रस ह्यूमर इज द लिक्विड विच इज फिल्ड बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन, ठीक है. ऑप्टिक नर्व, दीज आर द नर्व्स विच टेक्स अवे द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना एंड सेंड इट टू द ब्रेन.
रेटिना, रेटिना इज द स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन है जहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है इनसाइड आवर आई. सिलियरी मसल्स, दीज मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मसल्स जो कि फ्लैक्सिबल हैं काफ़ी ज़्यादा. सो इन मसल्स की वजह से ही यहाँ पर लेंथ जो है अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर पाता है विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स, राइट. सो ये मसल्स का फ्लैक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू सी थिंग्स क्लियरली फार अवे एंड द नियर बाय थिंग्स. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वन बाय वन है इन सभी के बारे में डिटेल से देखते हैं. आप लोग साथ ही साथ नोट भी करते जाना, ठीक है. चलो, सो द फर्स्ट थिंग वी वांट टू अंडरस्टैंड इज द क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है. इसे हमने क्रिस्टलाइन लेंस क्यों बोला है? देखो, सबसे पहले तो तुम इसकी शेप पे गौर करो. ये जो इसकी शेप है दैट इज अ कन्वेक्स लेंस. तो इसका मतलब हमारी आंखों में कैसा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है, ठीक है. तो ये जो कन्वेक्स लेंस हमारी आंखों में है इसका नेचर कैसा है, मतलब व्हाट इज दी सब्सटेंस, किसका बना हुआ है? तो ये होता है क्रिस्टलाइन जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, विच इज डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट क्योंकि लाइट उसमें से एंटर कर सकती है, ठीक है. और इस लेंस की इतनी कैपेबिलिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेचुरल है, ठीक है. सेकेंड भी इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि अपना फोकल लेंथ चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है. सो देखो, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल, लेंस बना होता है, ठीक है. इट प्रोवाइड्स द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. दिस इज कन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्जेस लाइट एट द रेटिना. सो दिस लेंस ब्लू लेंस एक्चुअली में क्या करता है, जो भी लाइट फॉल होती है उस पर, उस लाइट को रेटिना पे जाके कन्वर्ज कर देता है, ठीक है. रेटिना इज द स्क्रीन जहां पर इमेज बनती है. सो दिस लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. और ये जो एक्चुअली में अगर हम देखें तो ये एक ऐसी इमेज बनाता है विच इज इन्वर्टेड, विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इन्वर्टेड एंड रियल, राइट. एंड ऑल्सो ये सारी लाइट को जो भी इसके ऊपर एंटर होती है उनको कन्वर्ज कर देता है एट रेटिना. सो दैट बिकॉज ऑफ दैट हम लोग बोल सकते हैं कि इमेज बनती है वहां पे, ठीक है. सेकेंड थिंग व्हाट यू नीड टू नो इज द एक्वस ह्यूमर. सो बेसिकली दिस एक्वस ह्यूमर इज एक्चुअली अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो बल्ज आउट पार्ट है, जिसकी वजह से हमारी आंखें बल्ज आउट नजर आती है बिकॉज ऑफ दैट लिक्विड ओनली. So देखो, aqueous humor is the clear liquid inside the front part of the eye. It nourishes the eye and keeps it inflated. ठीक है, वो उसे थोड़ा गोल बनाए रखती है, ठीक है, वो उसको फुलफिल करके रखता है. एंड ये हमेशा आपकी आंखों को मॉइस्चराइज करके रखता है बिकॉज वेनेवर आवर आईज आर ड्राई, जब हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं तब हमें देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है. हमें हमेशा अपनी आंखों को ब्लिंक करना पड़ता है, राइट, सो दैट जो हमारी आईज हैं वो मॉइस्चराइज रहें हमेशा एंड वी कैन सी ऑल द थिंग्स बिकॉज क्लियरली अच्छे से हम देख सके, राइट. कभी कभी ऐसा होता है व्हेन वी फॉरगॉट टू ब्लिंक और समटाइम्स व्हेन वी जैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है हम बहुत ही कम बार, जैसे हम नॉर्मली बातें करते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उस टाइम पे हम अपनी जब आंखें ब्लिंक करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बार होता है एज कंपेयर्ड व्हेन वी वर स्टडिंग, ठीक है. तो वहाँ पर जब हम स्टडी करते हैं तो हम उतनी ज़्यादा अपनी आइज़ को ब्लिंक नहीं कर पाते एंड दैट इज़ द रीज़न जो बच्चे बचपन से ही ज़्यादा पढ़ते हैं, बुक्स में ज़्यादा देखते हैं, उन बच्चों की आई साइट नॉर्मली वीक हो जाती है. क्यों वीक हो जाती है? बिकॉज उनकी आंखों में जो ब्लिंकिंग होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है. ड्यू टू दैट दिस एक्वस ह्यूमर जो कि नॉरिश करता है आई लेंस को, वो ज़्यादा बार जो है वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रख पाता है, ड्राई हो जाती है आइज, फिर इचिंग वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है एंड द डिफेक्ट्स अकर्स ओवर देयर, ठीक है. सो बेसिकली हमें क्या करना है, ब्लिंकिंग करते रहना है, ठीक है. और इसका जिम्मेदार कौन है, कौन हमारी आंखों को नरिश करके रखता है, बल्ज आउट जो पोर्शन आता है वो भी एक्वस ह्यूमर की वजह से होता है. सो बेसिकली एक्वस ह्यूमर एक क्लियर लिक्विड है, क्लियर होना जरूरी है तभी तो लाइट उसमें से एंटर हो पाएगी, राइट. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है प्यूपिल. सो प्यूपिल, ये जो प्यूपिल है वो आप कैसे पहचानेंगे अपनी आंखों में? प्यूपिल इज दी ब्लैक होल, ठीक है, इट्स रियल होल जहां से एंटर होती है लाइट, ठीक है. तो यू कैन से इट इज द ब्लैक कलर्ड होल इन योर आईज. तो आपने देखा होगा कि आपकी आंखें सी योर आईज इनसाइड द मिरर, तो बीच में बिल्कुल छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं, बट देयर इज अ स्मॉल होल ब्लैक दैट इज होल एंड वो होल बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, दैट इज प्यूपिल.
एंड दैट कैन बी सेड एज द विंडो ऑफ योर आई, बिकॉज इसी पार्ट से लाइट रेज एंटर करती है इनसाइड योर आईज, ठीक है। सो बेसिकली दिस प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट गोइंग इनसाइड योर आईज। तो अगर जैसे मान लो आप बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट एरिया में हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप 12 o'clock पे आप धूप में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यू कैन से बहुत ज़्यादा लाइट होती है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है ऑफ द लाइट, राइट। तो उस वक्त तक हमारे जो प्यूपल होते हैं वो छोटे हो जाते हैं ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाए, ठीक है। सो इट कंट्रोल्स भाई। और जब कभी भी अंधेरे वाले कमरे में आते हो, लेट बहुत ही कम लाइट है जहाँ पे, तो आपके प्यूपल्स ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, सो दैट जितना भी अमाउंट आपको देखने के लिए नेसेसरी चाहिए वो अमाउंट लाइट हमारी आंखों में एंटर हो सके, ठीक है। सो दिस प्यूपिल इट इज द विंडो ऑफ द आई, इट इज द सेंट्रल अपर्चर इन आइरिस, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है। तो बेसिकली इट कंट्रोल्स द लाइट, ये बड़ा हो जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड एंड स्मॉलर हो जाता है, राइट। एंड मेनली ये क्या करता है कि ये आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच होता है, ठीक है। इसका मेन काम कंट्रोल करना होता है कि भाई कितनी लाइट जा रही है और कब कितनी जानी चाहिए, क्योंकि रेटिना को हार्म होने से हमें बचाना है, ऑलराइट। ये इसका नेसेसरी पार्ट है प्यूपिल का, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज द आइरिस। सो जो कलर्ड पार्ट होता है, किसी का ब्लू, किसी का ग्रीन, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लैक, तो ये जो कलर्ड पार्ट आप अपनी आंखों में देख रहे हैं बिल्कुल गोल जो होता है, दैट इज द आइरिस एंड दैट इज अ मस्कुलर पार्ट, ठीक है। तो देखो इट इज अ डार्क मस्कुलर डायाफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, इट इज ऑफ वेरियस कलर्स इन ह्यूमंस, राइट। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है प्यूपिल को कि उसकी जो साइज है उसे बड़ा कर सके, छोटा कर सके, ठीक है। सो दैट इज द मेन यू कैन से मेन फंक्शन ऑफ द आइरिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्यूपिल का बड़ा होना कम होना डिपेंडिंग ऑन दी सेफनेस ऑफ योर आईज, राइट। सो ये जो आइरिस होता है डिफरेंट कलर्स का होता है एंड ऑलवेज रेगुलेट्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, दैट्स इट। इसका बस इतना ही फंक्शन है, ठीक है। फिर देखिए आप नेक्स्ट कॉर्निया। कॉर्निया यू कैन से इज द आउटर पार्ट, जो आउटर बाउंड्री है ना पूरे आई की, दैट इज द कॉर्निया। So देखो it is the outermost transparent part, it provides most of the refraction of the light, because first time जब light हमारे आंखों में enter करती है तो सबसे पहले कॉर्निया से go through करती है, then comes the aqueous humor, ठीक है, then comes the pupil, then comes the lens and then comes the you can say the vitreous humor and then the retina। तो basically सबसे पहला refraction जब light air से किसी medium में जा रही है तो पहला रिफ्रैक्शन और मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो अकर होता है वो हमारा कहाँ होता है, कॉर्निया पे होता है, ठीक है। सो बेसिकली जो भी लाइट एंटर करी है सबसे पहले वो कॉर्निया से जाके टकराती है, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट इज द विट्रियस ह्यूमर। अब आप सोचेंगे ये भी क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर इस लेंस से लाइट अगर रेटिना तक पहुंचनी है तो देयर हैज टू बी द ट्रांसपेरेंट you can say substance over there, ठीक है। So vitreous humor is a clear colorless fluid that fills the space between the lens and the retina of your eye, ठीक है। तो रेटिना और लेंस के बीच का जो भी स्पेस है that is filled up with the clear transparent liquid and this is known as the vitreous humor, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्टिक नर्व। सो दिस ऑप्टिक नर्व इज एक्चुअली द नर्व जो कि क्या करती है, विजुअल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है फ्रॉम द रेटिना। सो बेसिकली रेटिना के ऊपर जो भी इमेज बनती है उस सबको कलेक्ट करती है एंड इट सेंड इट टू द ब्रेन। ब्रेन फिर उस इमेज को सीधा करता है, बिकॉज हमें तो इन्वर्टेड इमेज मिली ना रेटिना पे, तो फिर ब्रेन उसे सीधा करता है एंड देन वी आइडेंटिफाई कि भाई किसकी इमेज है, हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्टिक नर्व का काम है ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना, जो विजुअल इंफॉर्मेशन हम रेटिना के पास है उसे वहां तक पहुंचाना, ठीक है। अब देखते हैं हम रेटिना। रेटिना इज एक्चुअली दिस होल एरिया वी कैन से जहां पर इमेज बनती है, दैट स्क्रीन वी कैन से, राइट। So retina is the screen on which image is formed, a real and inverted image is formed over there. It is a delicate membrane having enormous number of light sensitive cells. It is where the image is formed. इस retina पे, because it is a screen, it is a membrane over which the image is formed. तो it has many light sensitive cells. ठीक है, उन cells की help से visual information जाती है through the optic nerve to the brain. Right, it has many cells, cone and rod shaped cells over there, जो कि कुछ light sensitive होते हैं, color sensitive होते हैं. Alright, so these are the various types of cells
which are present on the retina, and there is the place where the inverted and real image formed. ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आता है सिलेरी मसल्स. नाउ दीज सिलेरी मसल्स है वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज ऑफ दीज सिलेरी मसल्स, अगर इनकी फ्लैक्सिबिलिटी में कमी आ जाती है, देन यू आर गोइंग टू हैव सम डिफेक्ट्स इन योर आईज. ऑलराइट, देखो, these are circle of tiny muscles around the lens. They change the shape of the lens by squeezing and relaxing. So basically, shape change होना lens का is the reason that you can see things nearby and the far away objects. Alright, और ये इसमें help कौन कर रहा है? Ciliary muscles. So basically, ciliary muscles responsible हैं जिन्होंने lens को पकड़ा हुआ है first of all, and they help the lens to change its focal length. ऑलराइट, सो अगर इनकी फ्लैक्सिबिलिटी, सिलेरी मसल्स की फ्लैक्सिबिलिटी में कुछ ऐसा डिफेक्ट आ जाता है कि भाई वो नहीं कर पा रही, उनकी फ्लैक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तब वहां पे क्या होगा? यू आर नॉट एबल टू सी थिंग्स क्लियरली, यू आर गोइंग टू गेट सम इफेक्ट इन योर आई, डिफेक्ट इन योर आई, राइट. सो दैट इज द मेन थिंग कि भाई इन सिलेरी मसल्स का फ्लैक्सिबल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ कम्स द स्क्लेरा पार्ट. स्क्लेरा पार्ट यू कैन सी दिस वन. This one is the sclera part, the white portion in your eye, जो कि white portion आपको दिखाई देता है, that is the sclera part. So this is the outer part of the eye which protects the eye. It is hard, opaque and white in color. Hard होता है, opaque होता है, white color का होता है. तो white part you are going to see in your eye is the sclera. ठीक है, तो mainly तुम अपनी आंखों में क्या क्या देख पाते हो? जब तुम अपनी मिरर में अपनी आई को ऑब्जर्व करोगे तो तुम क्या क्या चीजें देख पाते हो? You can see the pupil, you can see the iris and you can see the sclera. तीन चीजें आप देख पाएंगे. उसके अलावा आपको न तो कॉर्निया का पता चलेगा because that is the transparent liquid. You can always see it is moisturized, right? You are going to see that हमेशा आपको एक shiny layer दिखाई देगा. ठीक है, but you are not able to see any other thing inside the eye. ठीक है, तो ये तीन चीजें you can observe it by the eye, you can say. ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग. एक्चुअली में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है. सो देखिए, सबसे पहला जो रिफ्रैक्शन अकर होता है वो होता है कॉर्निया पे, द आउटर लेयर ऑफ द आई. ठीक है, यहां से लाइट रेज आ रही हैं, लाइट रे आ रही हैं, सबसे पहले वो कॉर्निया पे फॉल करेंगी, राइट, एंड देन इट विल गो थ्रू द एक्वेस ह्यूमर एंड देन इट विल गो थ्रू द यू कैन से प्यूपिल. प्यूपिल से एंटर होते हुए लेंस आता है. ये लेंस क्या करेगा? उन लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा. जैसे ही लाइट रे कन्वर्ज करेगा, light rays through this vitreous humor, they are going and they are converging at retina, they are forming image at retina which is inverted. अब इस inverted image की जो भी information यहाँ है वो visual information ये optic nerves यहाँ से ले लेते हैं and they send it to the brain. ठीक है, ब्रेन में send करने के बाद ब्रेन क्या करता है? उसको image को सीधा करता है and then you are able to observe it. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है? मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट द कॉर्निया. ठीक है, फिर यहाँ पे आपको इमेज मिलती है बाय वेरियस रिफ्रैक्शंस. क्यों? देखो, वेरियस रिफ्रैक्शंस क्यों बोले गए हैं? देखो, सबसे पहले कॉर्निया पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर एक्वेस ह्यूमर भी एक लिक्विड है, उस पे रिफ्रैक्शन हुआ, देन इट गोज इनटू द लेंस, उस पे रिफ्रैक्शन, एंड देन इट विट्रियस ह्यूमर, उस पे रिफ्रैक्शन, तब जाके जो हमारी लाइट है then comes it to the retina. So there are various successive refractions and as a result of those successive refractions we are going to get the image at the retina और वो भी inverted. Alright, so this is how the human eye works. This is the working of the human eye. ठीक है? Now let's talk about the power of accommodation. So देखिए, power of accommodation का मतलब होता है वो ability, जिस एबिलिटी की बेसिस पे आप पास की चीज़ों को देख पाते हैं, आप दूर की चीज़ों को देख पाते हैं. जब आप पास की चीज़ों को देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर रीडिंग अ बुक, तो आप पास की चीज़ें देख रहे हैं यार, यू आर सीइंग दी वर्ड्स रिटन ऑन दी बुक, तो आप बहुत ही नज़दीक करके देख रहे हैं. इफ़ यू आर एबल टू सी इट क्लियरली, दैट मीन्स कि आप पास की चीज़ें देख रहे हैं एंड अब आपका जो फोकल लेंथ है, आपके लेंस का जो फोकल लेंथ है वो काफ़ी कम है. ठीक है, फिर जब आप दूर की चीज़ों को देख रहे हो, लेट्स से थोड़ा सा ही दूर कोई पेड़, कोई इलेक्ट्रिक पोल, यू आर सीइंग दैट. ठीक है, तो आप जब दूर की चीज़ देख रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड इसका मतलब अब तुम्हारी आंखों का जो फोकल लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है. बुक के कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो चुका है बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन दैट फार अवे ऑब्जेक्ट. सो ये कैपेबिलिटी, ये एबिलिटी कि यू कैन फोकस ऑन दी
nearby objects and you can focus on the far away objects. So focal length कभी कम और कभी ज़्यादा, right? So ये ability कि तुम्हारा eye lens can change its focal length is known as the power of accommodation. Alright, power of accommodation is the ability of the eye lens to focus near and far objects clearly on the retina by adjusting its focal length. ये जो हमारी पावर है, this is limited, of course. क्यों limited कैसे है? Because अगर हम कुछ ज़्यादा ही नज़दीक कर लेंगे चीज़ों को, तो we are not able to see clearly, उसको clear नहीं देख पाएंगे. That means वहाँ तक focal length नहीं हो पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा हमारा आई लेंस, ठीक है? तो हमारे आई लेंस में जो फोकस करने की पावर होती है वो एक यू कैन से एक लिमिट से स्टार्ट होती है एंड देन इट फोकस अप टू द वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, अप टू द इन्फिनिटी. बट देयर इज सम लिमिटेशन इन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? उसके पास अगर आप देखते हैं देन यू आर नॉट एबल टू सी दोज थिंग्स क्लियरली. ऑलराइट, नाउ सी, it implies the focal length of the eye lens cannot be reduced beyond a certain minimum limit. आप focal length को एक लिमिट के बाद कम नहीं कर सकते, ठीक है? The images of the object at different distances from the eye are brought focus on the retina by changing the focal length eye lens, ठीक है? और ये इसमें हेल्प कौन करता है? मेनली हेल्प कौन करती है? आपकी सिलियरी मसल्स. सिलियरी मसल्स जो लेंस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसको रिलैक्स करती हैं, ठीक है? सो व्हेनेवर द सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स एंड द आई लेंस इज थिन, तो आप दूर की चीज़ों को देख पाएंगे, ठीक है? और जब कभी भी आपकी जो सिलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, लेंस थिक हो जाता है और फोकल लेंथ पास हो जाती है. दैट मीन्स यू कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. सो जब कभी भी आप पास की चीज़ों को देख रहे होते हैं उस वक्त आपने क्या किया हुआ होता है? आपने एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्ट आपकी जो मसल्स हैं वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हैं एंड योर आई लेंस इज थिक, ठीक है? एंड व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन द फार अवे ऑब्जेक्ट्स, तब आपकी जो सिलियरी मसल्स हैं दोज आर रिलैक्स एंड द आई लेंस इज थिन एट दैट टाइम, ठीक है? तो इस तरीके से वो अपनी जो फोकल लेंथ है उसको चेंज करता है, ठीक है? एंड दिस इज नोन एज द पावर ऑफ अकोमोडेशन. नेक्स्ट देखिए, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट. सो बेसिकली देखिए, आप की जो नॉर्मल ह्यूमन आई है, इफ वी टॉक अबाउट द नॉर्मल ह्यूमन आई, सो नॉर्मल ह्यूमन आई का एक लिमिट है कि वो वहाँ तक देख पाता है, ठीक है? उसके पास वो नहीं देख पाएगा. उसके पास बीच में आप कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो उसको ब्लर दिखाई देगी, डबल दिखाई देगी, राइट? तो बेसिकली ह्यूमन आई एक लिमिट से स्टार्ट करता है क्लियर देखना, ठीक है? एंड दैट पॉइंट जिसके और पास अगर हम रख दें, उसके ज़्यादा पास अगर कर दें, उस डिस्टेंस को अगर हम डिक्रीज कर दें, तो वी आर नॉट गोइंग टू सी थिंग्स. दैट मिनिमम डिस्टेंस जहां से आप क्लियरली देखना स्टार्ट करते हैं, दैट कैन बी टेकन एज द नियर पॉइंट, ठीक है? सो देखिए, द नियरेस्ट पॉइंट एट विच अ स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी सीन डिस्टिंक्टली बाय द आई इज कॉल्ड द नियर पॉइंट. एंड एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर इज द नियर पॉइंट, ठीक है? तो मतलब अगर नॉर्मल ह्यूमन आई की हम बात करें ऑन एन एवरेज, तो 25 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस जहां से आपकी आईज क्लियरली देखना स्टार्ट करती हैं, ठीक है? सो इफ यू वांट टू सी द थिंग्स क्लियरली एट लेट्स से 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और अप टू दी 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, सो यू आर गोइंग टू सी द ब्लर इमेजेस, नॉट द क्लियर वंस. एंड देन ये क्या होता है, ये धीरे 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 से अब यहाँ से हमारा देखना स्टार्ट हुआ क्लियरली एंड नाउ दिस रेंज गोज ऑन अप टू द इन्फिनिटी, ठीक है? अब देखिए, जैसे जैसे हम एज होते जाती है वैसे वैसे हमारी आईज की जो मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स, वो वीक होते जाती हैं, ठीक है? फिर उनमें वो एबिलिटी नहीं हो पाती कि वो क्या करें, वो नियर बाय चीज़ों को भी फोकस कर पाए, दूर भी फोकस कर पाए. वो एबिलिटी इनकी धीरे धीरे लूज होती जाती है एंड जिसकी वजह से यू कैन से कि इनका जो नियर पॉइंट है वो और फार पॉइंट दोनों अफेक्ट होते हैं. यू आर गोइंग टू गेट डिफरेंट नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट्स. नियर बाय चीज़ें भी नहीं दिखती, दूर की चीज़ें भी नहीं दिखती, तो दैट कैन बी टेकन एज यू कैन से कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हैं दोनों ही चीज़ें. सो देखिए, जैसे जैसे एज एडवांस होती है तो यू कैन सी नियरली 60 ईयर्स के पर्सनस के लिए 25 सेंटीमीटर उसका नियर पॉइंट होता है. दैट मीन्स नॉट 25, दैट इज 200, राइट? तो 200 सेंटीमीटर के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी होगी, उसके अंदर कोई रखी होगी ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर, लेट इट बी 150 सेंटीमीटर पे कोई रखी होगी या 100 सेंटीमीटर पे कोई रखी होगी, दे आर नॉट एबल टू सी दैट क्लियरली. फिर उनके लिए जो नियर पॉइंट है वो 200 से स्टार्ट होता है, तो दे कैन सी द थिंग्स क्लियरली एट 200 सेंटीमीटर एंड देन दी far away things, right? So that is the main thing
जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, देयर इज अ नियर पॉइंट जिसके बियॉन्ड, जिसके पास अगर आप देखना चाहेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे क्लियरली। इसी तरीके से फारदेस्ट पॉइंट जहां तक भी ह्यूमन देख सकता है, ह्यूमन आई, नॉर्मल ह्यूमन आई की बात हो रही है, वो देख सकती है, दैट इज अप टू द इंफिनिटी, बिकॉज यू आर एबल टू सी द स्टार्स दैट आर वेरी 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 फार अवे। ऑलराइट, सो वी कैन से कि बहुत दूर तक देखा जा सकता है। सो वी कैन से कि भाई हमारी जो नॉर्मल विजन की बात करें तो फारदेस्ट पॉइंट इज द इंफिनिटी। नाउ सी, जब कभी पास की ऑब्जेक्ट होती है, लेट इट बी पास की ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या होता है, रेज आती हैं, they went up to the convex lens and they converge at the retina, you are going to get the clear image। ठीक है, इसी तरीके से दूर की कोई रेज आ रही है, दूर की ऑब्जेक्ट से कोई रेज आ रही हैं, ठीक है, they are going inside the convex lens inside our eye and they are going to converge it and you are going to get the clear image। So that's how you are going to get the near point and far point and you can see the clear images of both the objects। ठीक है, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए आप लोग। Alright, now let's move up to the least distance of distinct vision। So देखिए, least distance of distinct vision का मतलब होता है वो कम से कम दूरी जहां तक आप अलग अलग क्लियर चीजों को देख पाते हो, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस, और दैट इज द 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई वी टॉक अबाउट। सो दिस इज द सेम एज द नियर पॉइंट। ठीक है, नियर पॉइंट में आप देख सकते हैं कि भाई पास की चीजों से लाइट रेज जा रही है, इट इज गोइंग इनटू द कन्वेक्स लेंस एंड देन यू आर गोइंग टू गेट अ क्लियर इमेज ऑन द रेटिना। ठीक है, तो ये हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है 25 सेंटीमीटर होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये बहुत ही एक अमेजिंग फैक्ट है परसिस्टेंस ऑफ विजन, जो कि आपको मूविंग चीजों में या फिर आपको ट्रिक करने में बहुत काम आता है। कैसे? देखिए, हमारी आईज में जब कभी भी हम 1/16 सेकेंड से कम टाइम में किसी इमेज को, हम किसी ऑब्जेक्ट को हमारी आंखों के सामने लेकर आए और हटा लें तुरंत, ठीक है, मतलब 1/16 सेकेंड से भी कम टाइम में हटा लें उसे, ठीक है, एंड देन हम क्या करें तो हमारी आंखों पे जो इमेज बनती है वो थोड़े टाइम के लिए रहती है, जब वो ऑब्जेक्ट हट जाती है सामने में तो भी रहती है, ये रहती है 1/16 सेकेंड के लिए। ठीक है, सो इफ एक ऑब्जेक्ट हमारे सामने है और उस ऑब्जेक्ट को हटा लिया जाए, जब वो हटा ली जाती है तो 1/16 सेकेंड तक हमारी आंखों पर वो इमेज रहती है उस ऑब्जेक्ट की, भले ही वो ऑब्जेक्ट हट चुकी हो। ठीक है, और इसी बात का फायदा उठाने के लिए हमें मूविंग पिक्चर्स जो बहुत स्टार्टिंग में आई थी ये ट्रिक करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू सी दैट देयर इज दी, यू कैन से, एक दूसरे के ऊपर फ्रॉग्स जो हैं वो जंप कर रहे हैं, राइट, वो जंप कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ये सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल है जिसमें हमारी जो इमेजेस हैं वो इतनी जल्दी 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 रोटेट हो रही है 1/16 सेकेंड के लिए कि वो हमें स्टिल पिक्चर्स की जगह पर मूविंग पिक्चर्स नजर आती है, वो है नहीं एक्चुअली में। ठीक है, सो बेसिकली ये रहता है परसिस्टेंस की कुछ देर तक हमारी रेटिना पे इमेज रहती है भले ही हम ऑब्जेक्ट को हटा ले, एंड दैट कुछ देर इज 1/16 सेकेंड। ठीक है, इसे ही हम परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं, जो कि हमारी आंखों पे रहता है। इट इज टेकन बाय अ स्टिल पिक्चर। तो अगर हमारी आंखों के सामने फोटोज हैं, ठीक है, हमारी आंखों के सामने फोटोज को 1/1 कितना स्पीड से, लेट इट बी 24 फोटोज पर सेकेंड अगर आपकी आंखों के सामने से जाएंगी तो आपको फोटोज नहीं नजर आएंगी, वो आपको दिखाई देगा मूविंग पिक्चर। वाई सो? बिकॉज पहली वाली जो फोटो होगी जब वो हटाई जाएगी तो कुछ देर तक उसका जो इमेज आपकी रेटिना पे बना होगा और उसके पहले ही, उस इमेज के हटने के पहले ही आपको सेकेंड पिक्चर दिखा देंगे, राइट। तो उस सेकेंड पिक्चर का जो भी इंफॉर्मेशन आपके रेटिना पे इमेज बनेगा दैट विल ब्लेंड अप मिक्स्ड विद द फर्स्ट वन। ठीक है, तो पहले वाली ऑब्जेक्ट की इमेज हटने के पहले ही दूसरी की इमेज बन जाना, एंड देन दूसरी का जो फोटो है वो हटते ही तीसरी का इमेज बन जाना, राइट। तो दैट इज कॉजिंग यू द मिक्स्ड अप थिंग, एंड आपको ऐसा लगेगा कि वो मूविंग पिक्चर्स हैं, बट एक्चुअली दे आर द स्टिल फोटोज। मैं आपको उसका एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, सी दिस वन। सो देयर आर वेरियस पिक्चर्स, यहाँ बहुत अलग अलग तरीके फ्रेम्स हैं हम बोले तो। ठीक है, तो ये देखो, ये एक पिक्चर है, इसका ठीक नेक्स्ट ये पिक्चर है, ठीक नेक्स्ट ये पिक्चर है, देन दिस वन, ठीक है, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन। तो ये अलग अलग पोजीशंस में स्टिल पिक्चर्स हैं, ऑलराइट।
और जब इन्हीं पिक्चर्स को बिल्कुल वन बाय वन आपके सामने बहुत तेजी से अगर आपके सामने लगाया जाए, उनको दिखाया जाए, राइट, तो आपको वो मूविंग पिक्चर दिखाई देगा। उसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए, बहुत तेजी से सिर्फ यही सारी पिक्चर्स हैं जिन्हें आपके आंखों के सामने से लेके जा रहे हैं बहुत जल्दी, लाइक 24 पिक्चर्स पर सेकेंड के यू कैन से उसके स्पीड से, ठीक है। तो ये आपको ऐसा लगेगा दिस इज मूविंग, बट इट इज नॉट मूविंग एट ऑल, इट इज अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स विच आर एट वेरी फास्ट मूविंग स्पीड। ऑलराइट, सो दिस इज नोन एज द परसिस्टेंस ऑफ विजन। ऑलराइट, लेट्स मूव अप टू द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज द कलर ब्लाइंडनेस। सो देखिए, हमारी आईज के रेटिना पे बेसिकली बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। कुछ कोन शेप के होते हैं, कुछ रॉड शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही जो सेल्स हैं वो अलग अलग काम करते हैं। कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, कुछ कलर सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए, आप देखिए, द रॉड शेप्ड सेल्स रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ब्राइटनेस और डार्कनेस, वेयर एज द कोन शेप सेल्स रिस्पॉन्ड टू कलर्स। सो अगर आपकी आंखों में ज्यादा कोन शेप सेल्स रहेंगे तो वो आपको कलर के लिए ज्यादा यू कैन से सेंसिटिव बनाएंगे, ठीक है। यू कैन वॉच आउट एंड यू कैन आइडेंटिफाई ऑल द कलर्स। बट अगर रॉड शेप सेल्स आपके उसमें ज्यादा रहेंगे आपके रेटिना पे, देन यू आर वेरी मच सेंसिटिव टू दी लाइट, डिम लाइट, ब्राइट लाइट, ठीक है। तो उसके सेंसिटिव में, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स ओवर देयर, रॉड एंड कोन शेप्ड। रॉड शेप जो सेल्स होते हैं वो किसके लिए रेस्पेक्टिव सेंसिटिव होते हैं, ब्राइटनेस और डिमनेस, एंड द कोन शेप सेल्स आर वेरी मच सेंसिटिव टू दी कलर्स, ठीक है। सो इसी के बेसिस पे वी कैन से डिम लाइट्स जब होती हैं तब रॉड सेंसिटिव होते हैं। कोन जो सेंसिटिव होते हैं वो सिर्फ ब्राइट लाइट में ही सेंसिटिव होते हैं, बिकॉज आप ब्राइट लाइट में ही जो है बहुत सारे वेरियस कलर्स को देख पाते हो, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग। कोन्स जो होते हैं वो रेड, ग्रीन, ब्लू, दीज आर द बेसिक कलर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू, इनसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। वो अलग अलग एक्सटेंट में यू आर गोइंग टू गेट द मिक्सचर ऑफ कलर्स ओवर देयर, देन यू कैन आइडेंटिफाई दैम, ठीक है। Due to genetic disorders, some persons do not possess some cone-shaped cells that respond to certain specific colors only. That is the main thing यहाँ पे। जो genetic disorders हो सकते हैं, maybe there are the reason, but अगर cone-shaped cells, कुछ specific color से related cone-shaped cells अगर नहीं होते हैं, ठीक है, तो you are not going to identify some you can say cells, तो that is taken as the color blindness over there। अगर आप किन्हीं specific colors को identify नहीं कर पाते हो तब हम ऐसा बोलते हैं that there is you can say less cone shaped cells over there and you are not able to identify the colors, and this thing is known as the color blindness, ठीक है। such person cannot distinguish between certain colors but can see well otherwise। सब कुछ अच्छे से दिखता है बट वो कलर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। उन्हें दो कलर अगर हम बहुत ही क्लियर अगर दिखाएं तो वो उनको सेम लग सकते हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों को जनरली ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है, ऐसा जो है ऐसा स्पेसिफिक किया हुआ है। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू टेल यू एन एग्जांपल ओवर हियर, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल हाउ यू कैन चेक योरसेल्फ दैट यू हैव द यू कैन से कलर ब्लाइंडनेस और नॉट। तो सी हियर, यहाँ पर ऐसे पर्सन्स, ठीक है, जिनको इस फोटो में एक नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इट इज अ 2 डिजिट नंबर हियर, ठीक है। सो लेट मी टेल यू दैट नंबर। सो बेसिकली ज्यादा फोकस से मत देखिए और इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू आर गोइंग टू सी दैट, ठीक है। सो फॉर नॉर्मल पर्सन, किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए अगर हम जो है बात करते हैं तो नॉर्मल विजन के लिए यू आर गोइंग टू सी द नंबर विच वन 74। ऑलराइट, यू आर गोइंग टू सी द नंबर हियर 74, आइडेंटिफाई इट, ऑलराइट, नॉर्मल विजन के लिए। बट इफ योर विजन इज लिटिल बिट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस केस, ठीक है, जब कलर ब्लाइंडनेस का केस होगा तो यहाँ पे आपको नंबर विजिबल हो सकता है 71। सो जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है, उनको यहाँ पर 71 दिखाई देगा। नॉर्मल पर्सन्स को यहाँ पे नंबर 74 दिखाई देगा। एंड अगर ज्यादा केस हो जाता है नॉर्मल ब्लाइंडनेस का, ठीक है, टोटल अगर हम बोले तो उसे इसमें एक भी नंबर नहीं दिखाई देगा।
फिर उसे सिर्फ डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ठीक है। उन्हें वो ये जो नंबर यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है विद डिफरेंट कलर, ये वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली दे विल बी सीइंग दीज सर्कल्स ओवर हेयर बट दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द कलर हेयर, राइट। तो उन्हें सेम कलर का दिखाई देगा एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट गोइंग टू सी एनी नंबर रिटन हेयर, ठीक है। सो अगर लिटिल बिट सीवियर केस में अगर हम बोल सकते हैं, सो टोटल कलर ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करें for more extent, so you are not going to see any number here, ठीक है। उन्हें सिर्फ यहां पर दिखाई देगा there are various dotted circles, ठीक है। सर्कल्स हैं बहुत सारे, छोटे छोटे बड़े बड़े, यही दिखाई देंगे। alright, so that is the thing how you can identify that you are able to have or see different colors or not, ठीक है। so this is known as the color blindness. Various persons have different nature about it. Now let's talk about the next thing which we are going to see is the color perception of animals. तो देखिए different animals का color perception different होता है. We humans have a color perception of only visible light. We can see up to the visible light, that is VIBGYOR, right? तो हम लोगों ने VIBGYOR जो स्टडी किया था, we can see only the 7 colors, ठीक है। हम लोग सिर्फ visible light के लिए ही sensitive हैं, मीन्स हमारे आईज देख सकती हैं। बट जो मधुमक्खियां होती हैं, बीज होती हैं, दे कैन परसीव द अल्ट्रावायलेट रेज ऑल्सो, तो वो अल्ट्रावायलेट रेज देख सकती है। उनकी आईज में इस तरीके की कैपेबिलिटी है दैट दे कैन सी द अल्ट्रावायलेट रेज बट वी कैन नॉट, ऑलराइट। सो बीज में क्या होता है, कोन शेप सेल्स होते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट रेज के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट रेज से सेंसिटिव होते हैं, दैट्स व्हाई दे कैन सी द अल्ट्रावायलेट रेज ओवर देयर, ठीक है। ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते बिकॉज उनके रेटिना पे वो सेल्स नहीं होते, ठीक है। इसी तरीके से जो चिक्स होते हैं, ठीक है, चिक्स जो आप जानते हैं, राइट। सो वो जो चिक्स होते हैं उनके रेटिना पर भी लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, तभी वो मॉर्निंग में थोड़ा सा भी उजाला होते ही फटाफट से खड़े हो जाते हैं, ठीक है। दे आर द मॉर्निंग पर्सन्स वी कैन से, सबसे पहले वही जगते हैं। एंड जरा सी शाम होते मतलब अगर आप बोलें कि काफी हद तक रोशनी जा चुकी है, सूरज ढलते ही दे गो टू स्लीप ओवर देयर। So that is because of the presence of some cells over their retina. Alright. So these are the color perceptions of animals. ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ आपको एक colored picture दिखाई दे रही है, ठीक है। So it is totally normal to you. आराम से आपको सब colors दिखाई दे रहे हैं. But dogs इसको likely, मतलब we can say maybe most likely dogs इसे कुछ इस color में देखेंगे, उन्हें ये colors दिखाई देंगे. They are very much you can say not similar to the eyes of humans. ठीक है, तो अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग यू कैन से परसीव्ड लाइट होती है. दे कैन वॉच अप टू डिफरेंट कलर्स बेस्ड ऑन द सेल्स प्रेजेंट ऑन देयर रेटिना. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अप टू द कैटरैक्ट. सो देखिए, कैटरैक्ट इज नॉट ए डिफेक्ट बट वी कैन से कि कैटरैक्ट कभी कभी आ सकता है. दिस जनरली इज अकर्ड एट द ओल्ड एज. एंड व्हाट इज दैट? लेंस के सामने एक लेयर बन जाती है, ठीक है, एक ओपेक लेयर बन जाती है. बिकॉज ऑफ दैट पार्शियल लाइट और हो सकता है पार्शियल ब्लाइंडनेस आपको हो जाए या फिर टोटल ब्लाइंडनेस हो सकती है बिकॉज ऑफ द कैटरैक्ट. सो देयर इज अ लेयर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो जो लाइट एंटर हो रही होती है वो लेंस तक नहीं पहुंच पाती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इमेज बननी चाहिए रेटिना पे वो नहीं बन पाती है, ठीक है. सो दैट इज द मेन थिंग. एंड यहाँ पर हम लोग अगर बोलें तो दैट इज द थिंग कि उनको ये लेयर की वजह से बिकॉज ऑफ दैट प्रेजेंस ऑफ लेयर दे आर नॉट एबल टू सी. हो सकता है पार्शियल उनको ब्लाइंडनेस मिले, हो सकता है पूरा ही ब्लाइंडनेस वहाँ पर अकर हो जाए. बट दिस कैन बी क्योर्ड एज सर्जरी की हेल्प से वो लेयर को हटाया जा सकता है. सो पर्सन जो हैं वो टोटल ब्लाइंडनेस को हटा सकते हैं अगर उन्हें कैटरैक्ट हुआ है. सो दिस कैन बी क्योर्ड, ठीक है, ये कोई ऐसी अलग नहीं है, ठीक है. और पूरा जो विजन है वो पूरा विजन अपने आप पहले जैसा पा सकते हैं, ठीक है. अब देखिए नॉर्मल विजन. नॉर्मल विजन जो है, जो हम लोगों ने देखा था कि भाई दूर की लाइट भी इजीली फोकस हो जाती है ऑन द रेटिना, ऑलराइट. एंड पास की लाइट भी जो है, अगर पास की ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही हो वो भी क्लियरली रेटिना पे फोकस हो जाती है. सो दिस इज द नॉर्मल विजन. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफेक्ट्स, जो डिफेक्ट्स अकर हो सकते हैं. एंड बाय दोज डिफेक्ट्स यू आर गोइंग टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, जैसे कि मायोपिया, आपको पास की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं, ब्लर दिखाई देती हैं. हाइपरमेट्रोपिया, दूर की चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं बट पास की चीजें ब्लर दिखाई देती हैं.
प्रेसबायोपिया, दूर की पास की दोनों की ही चीजें जो है ब्लर दिखाई देती हैं, एंड एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म इज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, वो अलग होता है, वी विल टॉक अबाउट दैट। सो देखिए फर्स्ट जो है मायोपिया, ये मायोपिया में क्या होता है, यू आर एबल टू सी द नियर बाय थिंग्स बट यू आर नॉट एबल टू सी द फार अवे थिंग्स। सो देखो दूर से कोई भी ऑब्जेक्ट की लाइट रेज जब आती हैं वो एंटर होंगी आई लेंस में और उनकी इमेज जो है वो रेटिना के पहले ही बन जाएगी, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ क्लियर इमेज, यू आर गोइंग टू गेट अ ब्लर इमेज। क्यों? क्योंकि रेटिना के पहले ही इमेज बन गई है, ठीक है। वहीं पर अगर हम शॉर्ट की बात करें, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो यहां से लाइट रेज जब जाएंगी सो क्लियर इमेज आपको रेटिना पे मिल जाएगी। तो पास की चीजें तो क्लियर दिख रही हैं, दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो हमारा यू कैन से फार पॉइंट है, जो इन्फिनिटी होना चाहिए था वो पास आ जाता है, नियर बाय आ जाता है, एंड यू आर नॉट एबल टू सी द इन्फिनिटी थिंग्स, राइट। और ये किस कारण हो सकता है? इट कैन बी बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस का ज्यादा कर्वेचर हो तो, या फिर इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, अगर आई बॉल जो है वो इलोंगेटेड हो गई है, सो रेटिना पीछे चला गया है, दैट इज हाउ इट कैन हैपन, राइट। सो दिस कैन हैपन इन द मायोपिया। नाउ हाउ टू करेक्ट इट? You can correct this by using concave lens, because concave lens क्या है? एक diverging lens है, ठीक है। सो किस तरीके से कर सकते हैं? देखो ये जो दूर से आती हुई लाइट रेज हैं, ठीक है, वो इस कनकेव लेंस में जाएंगी। कनकेव लेंस में जैसे ही वो जाएंगी, ठीक है, तो उनकी जो इमेज है वो किस तरीके से बनेगी? इमेज बनेगी कहां पर? फोकस पे। सो ये फोकस पे इमेज बन गई है। नाउ दिस आई लेंस विल सी द ऑब्जेक्ट एट एफ एंड एबल टू सी इट क्लियरली ऑन द रेटिना, ठीक है। सो लाइट रेज पहले इस कनकेव लेंस में जाएंगी, कनकेव लेंस इमेज बनाएगा एफ पॉइंट पे, जो कि जहां से मायोपिक आई देख सकती है क्लियरली, ये इमेज बन जाएगी रेटिना पे, एंड यू आर गोइंग टू गेट अ गुड क्लियर इमेज ओवर देयर, ठीक है। सो यहां पर आप देखिए, यहां पर अगर बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो हम एक स्पेसिफिक फोकल लेंथ का कनकेव लेंस चुनते हैं। स्पेसिफिक फोकल लेंथ क्यों? बिकॉज हम आई को चेक करवाते हैं, सबसे पहले मायोपिक आई को चेक करवाएंगे और देखेंगे कि उसका जो फार पॉइंट है, जो इन्फिनिटी होना चाहिए था, वो कहाँ तक पास आ गया है, ठीक है। मे बी इट इज अप टू दी 100 सेंटीमीटर और 1000 सेंटीमीटर। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसी का लेंथ, जो लेटेस्ट उसका फार पॉइंट है, जो अभी उसका फार पॉइंट है, उस फार पॉइंट का ही हम फोकल लेंथ लेकर कनकेव लेंस को बनाते हैं। इसीलिए हर एक बंदे के लिए, हर एक पर्सन के लिए स्पेसिफिक चेकअप होता है और उसी के हिसाब से उसके खुद के इंडिविजुअल आई लेंस होते हैं, ठीक है। आप किसी और का आंखों का चश्मा यूज नहीं कर सकते। इफ यू आर बोथ, लेट 2 persons आर मायोपिक, ठीक है, 2 persons के में है मायोपिया, बट वी कैन नॉट यूज द लेंस ऑफ बोथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन दूसरे का भी चश्मा यूज कर ले, उसको क्लियर दिख जाए, ऐसा नहीं होगा। हर किसी के लिए स्पेसिफिक अलग अलग होता है, ठीक है। सो देखिए यहां पर किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना फोकल लेंथ का होना चाहिए, जो लेंस आप ले रहे हैं कनकेव लेंस, वो कितने फोकल लेंथ का होना चाहिए। उसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए x जो है वो है फार पॉइंट, ठीक है। लेट इट बी कि भाई जो इन्फिनिटी होता था आई के लिए, नॉर्मल आई के लिए, वो अब यहां तक हो गया, फोकल लेंथ तक हो गया, ठीक है। मान लो ये जो आई लेंस है बस यहीं तक क्लियर देख पाता है, नियर पॉइंट से यहीं तक वो क्लियर देख पाता है। सो दिस पॉइंट कैन बी टेकन एज दी नियर फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई, ठीक है। मायोपिक आई के लिए फार पॉइंट ले लिया हम लोगों ने, ये फार पॉइंट को हमने x मान लिया, ठीक है। अब देखिए इमेज कहाँ बननी चाहिए, -x पे बननी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लेंस, कन्वेक्स लेंस पे -x पे बननी चाहिए इमेज, ताकि मायोपिक आई को क्लियरली दिख जाए, है ना। यहाँ पर v -x लेंगे, u हमारी इन्फिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया गया है, वो इन्फिनिटी, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला, देन यू आर गोइंग टू गेट द फोकल लेंथ इज -x। सो जितना भी उस मायोपिक पर्सन का नियर फार पॉइंट होगा, नॉट द नियर पॉइंट, फार पॉइंट होगा, उतना ही फोकल लेंथ नेगेटिव में हम लोग उसी फोकल लेंथ का लेंस चूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस स्पेसिफिकली, ठीक है। एंड फिर जो है मायोपिक आई क्लियरली देख सकती है पास की भी चीजें, दूर की भी चीजें, यूजिंग द लेंस, ठीक है। सो दैट इज द मेन थिंग। इस तरीके से हम मायोपिक आई को करेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज हाइपरमेट्रोपिक। अब हाइपरमेट्रोपिक में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिक में क्या होता है कि हम दूर की चीजें देख पाते हैं
बट पास की चीज़ें नहीं देख पाते हैं। तो मतलब हमारा जो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होना चाहिए था वो पीछे चला गया है, हम और वो दूर हो गया है। 25 की जगह में भी इट बी 100, 200, 250 सेंटीमीटर, तो वो दूर तक अब वो नहीं देख पाता है, पास की चीज़ें तो बिल्कुल नहीं देख पाता है। ठीक है, सो ये जो प्रॉब्लम होती है, दिस डिफेक्ट इज टेकन एज और कॉल्ड एज दी हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल नियर पॉइंट होता है उसकी इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है। तो मतलब आई बॉल या तो छोटी हो गई है तभी तो रेटिना के पीछे बन रही है, या फिर फोकल लेंथ जो है वो आई लेंस का बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि अब अगर इतनी दूर अगर पहले नियर पॉइंट ये था, ठीक है, यहां से तो क्लियर नहीं दिख रही, इमेज पीछे जा रही है। ठीक है, बट अगर हम थोड़ा सा दूर चले जाते हैं तो नियर पॉइंट से यहाँ से जो आई लेंस में इमेज जो लाइट रे जा रही है इसकी इमेज बिल्कुल सही रेटिना पे बनेगी। सो नियर पॉइंट पीछे चला गया, दूर चला गया है ह्यूमन आई से। इसको कैसे करेक्ट करेंगे, इसको हम करेंगे कन्वेक्स लेंस से। ठीक है, सो कन्वेक्स लेंस से इसको किस तरीके से करेक्ट करेंगे, देखिए कन्वेक्स लेंस हम यहाँ लगाएंगे तो दूर वाली जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दूर वाली ये वाली चीज तो बिल्कुल सही दिख रही थी, इस डिस्टेंस पे सही दिख रहा था सब कुछ। पास वाली जो चीजें हैं इसकी इमेज बन रही है, सबसे पहले कन्वेक्स लेंस क्या करता है, पास वाली चीज की जो इमेज है वो कहाँ बनाएगा, दूर पे, जहां पर आई को सही दिख रहा है। फिर वहां से हमारी नॉर्मल ह्यूमन आई देखती है एंड इमेज जो है वो सही बन जाती है। ठीक है, सो अब इस लेंस का काम क्या है, पास की चीजों को दूर दिखाना, क्योंकि दूर की चीजें तो देख पाता था, राइट। सो अगर पास की चीजों की इमेज अगर दूर बन जा रही है तब वो इजीली दूर की चीजों को भी देख पाएगा, उस इमेज को देख पाएगा, राइट। सो दैट्स हाउ इस कन्वेक्स लेंस की हेल्प से हम हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी आप जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहां मान लीजिए कि भाई ये जो नियर पॉइंट है, लेट इट बी डी। ठीक है, ये आपने -d ले लिया है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, पास रखी हुई है, d डिस्टेंस पे रखी हुई है, 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई है। जो इमेज बन रही है वो -x पे है। मान लीजिए x दूरी तक वो आई लेंस देख पाती है करेक्टली। ठीक है, सो दिस इज द x डिस्टेंस, यहां से लेकर ह्यूमन आई से लेकर जो पॉइंट है जहां तक वो देख पा रही है। ठीक है, तो दैट कैन बी टेकन एज द डिस्टेंस एज -x। तो हमें इमेज बनानी है -x पे, ऑब्जेक्ट रखी है 25 सेंटीमीटर पे। ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला यूज करने के बाद आपको मिलना चाहिए जो करेक्ट फॉर्मूला आपको मिलना चाहिए, दैट इज f equals to xd divided by x minus d. Using this formula you can get the focal length, exact focal length जिसका लेंस इस पर्सन को चूज करना है, यूज करना है। ठीक है, अगर ऐसे पता चल जाता है then he can or she can correctly see the nearby objects also, far away तो वो देख पाता था। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड डिफेक्ट जो कि ह्यूमन आई में आकर होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेसबायोपिया। सो देखो ये जो प्रेसबायोपिया है ये जनरली उन पर्सन्स में होता है जो कि काफी ओल्ड एज के हो गए हैं, उनकी आईज की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, सिलियारी मसल्स वीक हो जाती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो नियर बाय चीज़ों को भी बहुत देख नहीं पाते, यू कैन से ब्लर इमेज दिखाई देती है, एंड फार अवे ऑब्जेक्ट्स भी ब्लर दिखाई देती हैं। ठीक है, तो पास की भी नहीं दिखाई देती, दूर का भी नहीं दिखाई देता, ओवरऑल तुम्हें पूरा का पूरा ब्लर दिखाई देता है। इस तरीके के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया। इस तरीके के डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए वी यूज बायफोकल लेंसेज, मतलब हम दोनों लेंस यूज करेंगे, दैट मीन्स कन्वेक्स भी कनकेव भी। किस तरीके से यूज करेंगे, देखिए नीचे वाला इस तरीके का डबल लेंस होता है, फॉर्मूला यू कैन से द लेंस वन। ठीक है, हो सकता है आपके जो ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंडमदर हैं वो इस तरीके का लेंस जो है वो यूज करते हो। ठीक है, तो देखिए जो फार अवे होता है, ठीक है, जो कि हमें दूर की चीजें दिखाता है, जो कि कौन होता है, कनकेव लेंस। तो ऊपर जो डिस्टेंस, ऊपर वाला जो लेंस होता है वो दूर देखने के लिए होता है, मतलब दूर की चीजों को देखने के लिए ऊपर वाले लेंस को यूज करते हैं। पास की चीजें देखने के लिए यू कैन सी द ग्रीन वन, तो ये पास की चीजों को देखने के लिए लेंस है जो कि नियर बाय के लिए लेंस है, एंड दैट इज द कन्वेक्स लेंस। सो नीचे कन्वेक्स लेंस, ऊपर कनकेव लेंस, सो दिस इज द बायफोकल लेंस, मतलब पास भी फोकल कर पास की चीजों को भी देख पा रहे हैं थ्रू दिस, एंड दूर की चीजों को देख पा रहे हैं थ्रू दी अपर लेंस। ठीक है, सो बायफोकल लेंस इज यूज्ड व्हेनेवर दी प्रेसबायोपिया डिफेक्ट जो है अकर होता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। सो देखिए एस्टिग्मेटिज्म जो एक यू कैन से डिफेक्ट है वो किस तरीके का डिफेक्ट है,
वो एक तरीके से कर्वेचर के डिफेक्ट की वजह से होता है। हमारी आई लेंस का जो कर्वेचर है उसमें डिफेक्ट की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरीके का डिफेक्ट अकर होता है। नाउ यू कैन सी दिस नॉर्मल गॉज हेयर, ये एक नॉर्मल गॉज है जहां पे तुम्हें सीधी हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई देंगी और सीधी वर्टिकल लाइंस दिखाई देंगी। इफ यू आर हैविंग अ नॉर्मल विजन तो तुम ये लाइंस देख सकते हो बिल्कुल सही से, ठीक है। लेकिन एक पर्सन जिसको एस्टिग्मेटिज्म है उसे कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। जब वो पर्सन फोकस करता है हॉरिजॉन्टल लाइंस पे तो उसे वर्टिकल लाइन कर्व दिखाई देती है, और जब वो पर्सन कर्व जो वर्टिकल लाइंस पे फोकस करता है तो हॉरिजॉन्टल लाइंस उसे कर्व दिखाई देती हैं। सो वो एक साथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों को ही सीधा सीधा नहीं देख पाता। दैट इज द डिफेक्ट नोन एज व्हाट इज नोन एज द एस्टिग्मेटिज्म। इस तरीके के डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंसेज, इस तरीके के लेंसेज यूज करते हैं, ठीक है। सो ये जो है यहाँ पर मेनली कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, स्पेसिफिकली उसी कॉर्निया का कर्वेचर जो है उसी के हिसाब से स्पेसिफिकली जो सिलेंड्रिकल लेंसेज हैं उन्हें बनाए जाते हैं, एंड देन दिस इफेक्ट कैन बी यू कैन से करेक्टेड, ठीक है। सो नाउ वी हैव स्टडीड द eye, human eye, and all the defect which we can study about this. Alright, so here we have finished our chapter. In the next lecture, we are going to revise the whole chapter and we will be doing some questions in the next one. Alright, so let's end the lecture here. So, thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming video. Thank you so much.